Hello students, welcome to MDC Learning, Standard TY BCom, Subject Export Marketing, Chapter Export Finance, Topic Procedure and Types of Open Letter of Credit. Procedure to open letter of credit. First we understand what are the procedure to open letter of credit. First, exporter's request. The exporter requests the importer to issue LC in his favor. LC is most secure form of payment in foreign trade. Okay, exporter पहला request करेगा importer को कि LC that is letter of credit उसके नाम पे issue करने के लिए, क्योंकि letter of credit एक secured payment है of foreign trade. Okay. उसके बाद importers request to his bank. The importer request his bank to open a LC. जैसा उसके नाम पे that is exporter के नाम फेवर में LC मिलता है that is letter of credit. Importer क्या करेगा, पहला request करेगा to open LC. Okay. He may either pay the amount of credit in advance or make request the bank to open the credit in current account with the bank. वो पहला पेमेंट कर सकता है एडवांस में, या वो रिक्वेस्ट करेगा कि तुम क्रेडिट करंट अकाउंट में ओपन करो. ओके, ये काम कौन करेगा? इम्पोर्टर. फिर इशू ऑफ LC. The issuing bank issues the LC and forward it to its correspondent bank with request to inform the beneficiary that the LC has been opened. Okay, अभी ये बैंक इशू करेगा LC और वो फॉलो कर देगा कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक को ये रिक्वेस्ट की ये जो बेनिफिशियरी है LC ये ओपन हो गया है. The issuing bank may also request the advising bank to add its confirmation to the letter of credit if so require the beneficiary. अभी जो issuing bank है वो confirm करेगा, advising request करेगा advising bank को कि confirm करो LC को to the beneficiary. Then we have a receipt of LC. The exporter takes in his possession the letter of credit. He should see to it that letter of credit is confirmed. अभी ये दो काम इम्पोर्टर करने के बाद एक्सपोर्टर देखेगा कि अपना जो लेटर ऑफ क्रेडिट उसके नाम पे कंफर्म हुआ है कि नहीं. देन ये जो कंफर्म हो गया तो फिर इस शिपमेंट ऑफ गुड्स में गुड्स एक्सपोर्टर इंपोर्टर को सप्लाई करने रखेगा. कैसा सप्लाई करेगा? देन द एक्सपोर्टर supplies the goods and the present the full set of document along with the draft to the negotiating bank. मतलब जैसा वो सप्लाई करेगा गुड्स वो पूरा डॉक्यूमेंट लेके जाएगा. ओके, ड्राफ्ट करेगा टू द नेगोशिएटिंग बैंक. किसको ड्राफ्ट बना के देगा? नेगोशिएटिंग बैंक को. उसके बाद ये नेगोशिएटिंग बैंक जो है स्क्रूटिनाइज करेगा, स्क्रूटिनिटी ऑफ डॉक्यूमेंट. द नेगोशिएटिंग बैंक देन स्क्रूटिनाइज द डॉक्यूमेंट and if they are in order makes a payment to the exporter. और जब वो पूरा डॉक्यूमेंट क्लियर है जैसा ऑर्डर में है एक्सपोर्टर का तो एक्सपोर्टर को पेमेंट क्लियर कर देगा. रियलाइजेशन ऑफ पेमेंट. The issuing bank will reimburse the amount to the negotiating bank. इसको बोलते हैं रियलाइजेशन ऑफ पेमेंट. इशूइंग बैंक क्या करेगा?
रीइम्बर्स करेगा, किसको? नेगोशिएटिंग बैंक को, तो जो पेमेंट किया था एक्सपोर्टर को. Then we have a document to the importer. The issuing bank in turn present the document to the importer and debits his account to the corresponding amount. फिर ये जो नेगोशिएटिंग बैंक के ऊपर रीइम्बर्समेंट लेता है इशूइंग बैंक, वो अपना सब डॉक्यूमेंट इम्पोर्टर को दे देगा, ठीक है, और उसका डेब्ट क्लियर करने का अमाउंट लेगा. We have several types of letter of credit. Let us understand. As you can see this picture, there is many letter of credits, different recoverable, irrecoverable, confirmed, revolving, transferable, back to back, without resources, red clause, slight and unsharable, standby LC. So these are some types of LC. So let us understand some types of LC. Revocable LC, letter of credit. The issuing bank reserves the right to modify or cancel the LC. Issuing bank के पास राइट है कि मॉडिफाई करो लेटर ऑफ क्रेडिट को या कैंसल करो लेटर ऑफ क्रेडिट को एट एनी टाइम विदाउट द प्रायर परमिशन ऑफ बेनिफिशियरी. कौन सा भी टाइम पे कोई परमिशन लेने का ज़रूरत नहीं है बेनिफिशियरी का. However, after revoking the LC, the issuing bank has to give notice to the beneficiary. Okay, उसने मॉडिफाई किया या कैंसिल किया, वो एक नोटिस बेनिफिशियरी को भेजना चाहिए. ओके. Revocable LC are risky and as such the exporter do not want to accept a revocable LC. तो एक्सपोर्टर को रिवोकेबल LC का नहीं चाहिए क्योंकि वो थोड़ा रिस्की है, क्योंकि जब वो बैंक में आएगा तो इशूइंग बैंक उसको कैंसिल भी कर सकता है या उसको मॉडिफाई भी कर सकता है. तो ये एक्सपोर्टर लोग पसंद नहीं करते हैं कि रिवोकेबल LC लेटर ऑफ क्रेडिट उनके नाम पे एश्योर हुए. Irrevocable LC, the exporters prefers irrevocable LC. ये बहुत प्रेफर करते हैं एक्सपोर्टर्स लोग. The issuing bank cannot modify or cancel the LC without prior permission of the beneficiary or exporter. मतलब issuing bank LC को कैंसिल भी नहीं कर सकता है या मॉडिफाई भी नहीं कर सकता है without the prior permission of beneficiary or exporter. Okay. With resources LC, the exporter is held to liable to the paying negotiating bank if the draft or bill drawn against LC is not honored by the importer or issuing bank. Okay. मतलब नेगोशिएटिंग बैंक को पे करना पड़ेगा अगर वो LC. The negotiating bank can make the exporter to pay the amount along with the interest and charge. Okay, the exporter will have to pay. उनको पे करना पड़ेगा अमाउंट जो इंटरेस्ट है और उसका चार्जेबल क्या है. ओके. द नेगोशिएटिंग बैंक हैज़ ऑलरेडी मेड द पेमेंट ईदर बाय डिसकाउंटिंग और परचेसिंग ऑफ बिल ड्रॉन अगेंस्ट LC अमाउंट. ओके. तो इसको बोलते हैं विथ रिसोर्सेस LC, जिसमें नेगोशिएटिंग बैंक एक्सपोर्टर को पे करने बोलेगा अमाउंट विथ इंटरेस्ट एंड चार्ज. ओके. विदाउट रिसोर्सेस LC को द नेगोशिएटिंग बैंक हैज़ no resources to the exporter, but
It has resources only to the issuing bank or to the confirming bank. मतलब विदाउट रिसोर्सेस नेगोशिएटिंग बैंक को कोई रिसोर्सेस नहीं है, इशूइंग बैंक और कन्फर्मिंग बैंक को ही रिसोर्सेस है. ओके, दे कैन ओनली मेक द एडवांस पेमेंट टू द एक्सपोर्टर एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंजेस डिसऑनर्ड बाय द इम्पोर्टर. अगर बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर होता है तो एडवांस पेमेंट नेगोशिएटिंग बैंक ही करके देती है. ओके, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, और एक बार रीड करके देखो तो अच्छा लगेगा. ओके, नेगोशिएटिंग बैंक हैज़ Negotiating bank has no resources to the exporter, but it is a resources only to the issuing bank or confirming bank. Okay, without resources LC में, that is letter of credit में, the resources is only to the issuing bank or to the confirming bank. Okay, द नेगोशिएटिंग बैंक एडवांस पेमेंट करता है एक्सपोर्टर को एंड वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज को डिसऑनर करता है टू इम्पोर्टर को. ओके, वो एडवांस पेमेंट करता है और बिल्स ऑफ डिसऑनर इम्पोर्टर को देता है. देन वी हैव कन्फर्म्ड एलसी एंड अनकन्फर्म्ड एलसी. When issuing bank is practically unknown in the exporter's country, the exporter may have asked the issuing bank to make arrangement to confirm the LC by the local bank in the exporter country. अगर समझो ना, issuing bank नया है, ओके, उसको कुछ नहीं मालूम एक्सपोर्टर कंट्री के बारे में, तो एक्सपोर्टर कंट्री क्या बोलता है, भाई तो जाओ लोकल बैंक से बात करके इशू करो और फिर कंफर्म करो. ओके, द कंफर्मिंग बैंक अंडरटेक टू ऑनर ऑल द ड्राफ्ट बिल ड्रॉन एंड प्रेजेंटेड बाय द एक्सपोर्टर विद इन द टर्म्स ऑफ एलसी. तो कंफर्मिंग बैंक क्या करेगा, वो पूरा अंडरटेक लेगा कि और बिल्स ड्रॉन किया जो प्रेजेंट किया एक्सपोर्टर को विद द टर्म्स ऑफ एलसी के साथ. ओके, अनकन्फर्म्ड एलसी, द करस्पॉन्डिंग बैंक इन द एक्सपोर्टर्स कंट्री डज नॉट इज कन्फर्मेशन एंड देयर बाय इट डज नॉट एक्सेप्ट लाइबिलिटी टू मेक द पेमेंट अंडर द एलसी. मतलब अनकन्फर्म्ड एलसी दैट इज लेटर ऑफ क्रेडिट, तो कॉरस्पॉन्डिंग बैंक क्या करता है, वो लाइबिलिटी को एक्सेप्ट नहीं करता. अगर पेमेंट किया तो पेमेंट करेगा अंडर एलसी में, पर लाइबिलिटी पहला पेमेंट करके फिर लेगा नहीं इम्पोर्टर से. ओके, द एक्सपोर्टर में ऑल्सो गेट द एलसी बिकॉज इट मेक श्योर टू रिसीव द मनी फ्रॉम द इम्पोर्टर बैंक. ओके, तो अनकन्फर्म एलसी में क्या बोलते हैं, तुम इम्पोर्टर बैंक से पैसा लो, हम लोग आपको इशू करते हैं एलसी. Okay, then we have transferable LC, non-transferable LC. A transferable LC contain a provision that the benefit of LC can be transferred either fully or partly to one or more parties. The issuing bank must be informed to regarding the transfer of LC to the third party. मतलब आपका जो लेटर ऑफ क्रेडिट है वो थर्ड पार्टी के नाम पे ट्रांसफ़र हो सकता है, इधर फुल्ली और पार्टली, तो आपका एलसी मिलेगा. ओके, नॉन ट्रांसफरेबल एलसी में फुल्ली भी नहीं ट्रांसफ़र होगा, पार्टली भी नहीं ट्रांसफ़र होगा. द एक्सपोर्टर कैन नॉट ट्रांसफ़र द एलसी टू द थर्ड पार्टी. ओके, इसमें एक्सपोर्टर थर्ड पार्टी को अपना एलसी ट्रांसफ़र नहीं करेगा. Okay, usually all the LC are not transferable in nature unless it is expressly stated the LC can be transferred. Usually कभी कोई करता नहीं है, अपना LC को ट्रांसफ़र नहीं करता है unless it is transferred. Okay, thank you.